Greetings to all of you in the blessed name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी को प्यार भरा सलाम। The Lord has given us one more time to come together online for the study of God's Word. परमेश्वर का वचन सीखने के लिए और एक बार ऑनलाइन आकर हमें इकट्ठा होने का परमेश्वर ने मौका दिया है। The time that God gives us to study His Word is very precious. जो समय परमेश्वर ने उसका वचन सीखने के लिए हमें दिया है वो बहुत ही बहुमूल्य है। His Word, transforms our life. उसका वचन जो है वो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। It gives us instructions and corrections for our day-to-day lives. वो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें सुधारने के लिए सूचनाएं देता है। So whatever we study, may the Lord help us that we may listen to it carefully and yield to, the Word of God. और जो कुछ भी हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे उसको हम ठीक ठाक रीति से सुने और उसमें हम बने रहे उस वचन में। And these days we have been looking at the life after death. इन दिनों में मृत्यु के पश्चात जो जीवन है उस विषय को हम देख रहे हैं। We saw that after death, the life, the soul, and the spirit, it shall reach the Lord. हमने देखा कि मृत्यु के बाद आत्मा और प्राण प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। And when the Lord comes, well, the dead in Christ shall rise. और जब प्रभु आएगा तो जो प्रभु यीशु मसीह में मरे हुए हैं वे जी उठेंगे। When we say it shall rise, from death, what we mean is the spirit and soul shall join the body that is turned to dust, and it shall come back from death. तो जब हम कहते हैं कि मृत्यु से जी उठेंगे तो जो शरीर पहले ही मिट्टी में मिल चुका है उस शरीर में आत्मा और प्राण मिल जाएंगे और वो जीवित हो उठेंगे। That shall happen when the Lord comes. वो तभी होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। And there will be many believers who will be living at the time. और उस समय बहुत से विश्वासी लोग जीवित रहेंगे। And they shall be transformed at that time. उस समय उनका रूपांतर होगा। With those who are raised from the dead, they together, the transformed and the raised ones, they shall in their glorified body be caught up into the presence of the Lord Jesus Christ. और उस समय जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे, जो जिंदा है वो रूपांतरित होंगे और दोनों भी एक महिमित शरीर के साथ परमेश्वर की समक्षता में पहुंचाए जाएंगे। Last week we were looking at those things. पिछले सप्ताह उन बातों को हमने देखा। Now this hour in this class we have to see what happens after that. और इस क्लास में हम देखेंगे कि उसके बाद क्या होगा। After the Lord catches up the church to be with him, what shall happen after that? और जब प्रभु उसकी कलीसिया को ऊपर उठा लेगा उसके बाद क्या होगा। As we saw last week, we shall meet him in the air, and what is going to follow after that? और हम हवा में मिलेंगे तो उसके बाद क्या होगा। Well, when we come to the scripture, we see that it shall be a time of, rewarding. और जब हम पवित्र शास्त्र में जाते हैं वचनों में तो हमें समझ में आता है कि वह जो है प्रतिफल देने का वह समय है। Bible tells clearly that we shall stand before the judgment seat of Christ, and all our work shall be, examined, and we shall be rewarded, for our faithfulness. और पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के या फिर हमें प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है और हमारे सारे कामों को परखा जाएगा और उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। And in this class we are going to see about that time of rewarding. और इस क्लास में वो जो समय रहेगा प्रतिफल मिलने का उसके विषय में कुछ बातों को हम देखेंगे। To begin with, we will read one verse from the scripture. शुरुआती में हम एक वचन पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। Yeah, here we see that mention of the judgment seat of Christ.
यहाँ पर हम मसीह के न्यायासन के बारे में पढ़ते हैं। We have the mention of the judgment seat of Christ in Romans chapter 14 and verse 10 also. रोमियो 14वां अध्याय और वचन 10 में भी इस मसीह के न्यायासन का उल्लेख हम देखते हैं। There, in the last portion of that verse, it says, "We shall all stand before the judgment seat of Christ." रोमियो 14 के 10 के आखिर में हम पढ़ते हैं, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। This is a very important truth for you and I to understand. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है जो आपको और मुझे समझनी है। Now, one thing we have to remember, एक बात हमें ध्यान में रखना है, these things that are going to happen in future are recorded for us in the scripture so that we may read that, understand that, and order our present life according to that. जो भविष्य में होने वाली बातें हैं वो पवित्र शास्त्र में लिखकर इसलिए रखी है ताकि हम उसको पढ़े, सीखे, समझे और उस प्रकार से हमारे जीवन में उसके अनुसार हम जिए। In that connection, this matter of judgment seat of Christ is very important. और इन सभी बातों में जो प्रभु का न्याय सिंहासन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Now, when we look at the scripture, judgments, we see various judgments. और जब हम पवित्र शास्त्र में जाते हैं तो अलग-अलग प्रकार के न्याय हैं। For example, the great white throne judgment is there. एक बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय वहां पर है। That is for the sinners alone. वो केवल पापियों के लिए है। All the sinners shall stand before that. सभी पापियों को उसके सामने एक दिन खड़ा रहना है। And there is another judgment which is called as the judgment from the throne of glory. और एक न्याय है जो महिमित सिंहासन के सामने होने वाला न्याय है। That is the judgment for the Gentiles when the Lord comes in his glorious appearance. और वह जो अन्य जाति है उनका न्याय है जब प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा में फिर से लौट आएंगे। In that glorious appearance, he shall judge even the Israelites also. और उसके महिमामय आगमन में वह इज़राइल का भी न्याय करने वाला है। So there are various judgments and various thrones from which the Lord, judges, which are for various different group of people. और अलग-अलग प्रकार के न्याय हैं, अलग-अलग प्रकार के सिंहासन हैं, वहां से अलग-अलग प्रकार के जो ग्रुप है या झुंड है उनका न्याय प्रभु करने वाला है। This judgment seat of Christ is for the New Testament believers. और यहाँ पर जो परमेश्वर का न्याय सिंहासन हम देख रहे हैं वह नए नियम के विश्वासियों के लिए है। Earlier we had seen about the resurrection and the rapture of the church. पिछले सप्ताह में हमने पुनरुत्थान और कलीसिया का ऊपर उठाया जाना उसके बारे में देखा। That is about the New Testament church. और वो नए नियम की कलीसिया के विषय में है। And those who are captured, or rather those who are raptured like that, caught up like that, they shall stand before the judgment seat of Christ. और जो भी ऊपर उठाए जाएंगे उन सभी को मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। So that means it is concerning you and I. इसका मतलब वो आपके और मेरे बारे में लिखा हुआ है। If it is about you and I, well, we should have a fair understanding about this. अगर वो आपके और मेरे बारे में है तो उसकी भली भांति जानकारी हमें होनी चाहिए। May the Lord help us. प्रभु हमें सहायता करे। Now, the first thing I want you to notice is, when shall this happen? और एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, ये कब होने वाला है? Or when this judgment seat of Christ will be set up, and when we shall be, our work shall be judged from there. कब ये मसीह का न्याय सिंहासन स्थापित होगा और कब हमारे कामों का न्याय होगा? Let me just bring to your attention 2-3 verses. 2-3 वचनों की तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। First of all, coming to Luke's Gospel, chapter 14. लूका रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में आएंगे। We will look at verses 12 to 14. 12 से लेकर 14 वचनों को पढ़ेंगे। We won't read the whole portion. पूरा भाग हम नहीं पढ़ेंगे। When you look at verses 12 and 13, the Lord is telling that when you arrange a feast, you should call people who are maimed, lame, blind, etc.
हम वहां पर देखते हैं प्रभु कहता है कि तू जब एक बड़े भोज का प्रयोजन करे तो जो कंगाल है, टुंडे है, लंगड़े है और अंधे है उनको बुला। And the reason he tells in verse 14, और वचन 14 में उसका कारण वह बताता है, thou shalt be blessed, for they cannot recompense thee. तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं। Now look at the second portion of verse 14. और वचन 14 का दूसरा भाग हम देखेंगे, For thou shalt be recompensed at the resurrection of the just. परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। Here I want you to notice that the resurrection, the time of resurrection and the time of recompense, that is rewarding, are being connected, are being linked here. और यहाँ पर जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुनरुत्थान होना या फिर धर्मियों का जी उठना और प्रतिफल मिलना, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। That means it is after resurrection that we are going to be rewarded. इसका मतलब जी उठने के बाद या पुनरुत्थान होने के बाद हमें प्रतिफल मिलने वाला है। When after resurrection? कब? पुनरुत्थान के बाद। Let us look at certain other verses. कुछ और वचनों को देखेंगे। Coming to Revelation chapter 22. प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में आएंगे। And verse 12. का 12वां वचन। This is very familiar verse. बहुत ही परिचित यह वचन है। Probably we know it by heart. और यह हमें कंठस्थ है। There it says, and behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. प्रकाशित वाक्य 22 का 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। These are the words of the Lord Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। He is telling about the coming for the church. वह बताता है कि मैं कलीसिया के लिए आ रहा हूँ। As we know, in this chapter, 3 times we see this promise being given. और यह अभी वचन इस अध्याय में 3 बार दिया हुआ है। In verse 7, behold, I come quickly. वचन 7, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। In verse 20 also, surely I come quickly. वचन 20 में, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। And in between, in verse 12 also, and behold, I come quickly. और इसके बीच में वचन 12 में देखते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। But in verse 12, when he says that he is coming quickly, he tells something about the reward also. और जब वचन 12 में वो कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, उस समय वह प्रतिफल की भी चर्चा वहां पर करता है। My reward is with me. प्रतिफल मेरे पास है। That means when I come, I am bringing the reward also. उसका मतलब जब मैं आऊंगा तब मैं अपने साथ प्रतिफल भी लेकर आऊंगा। And he is bringing that reward to give to every man according to his work. और वह हर एक को अपने अपने काम के अनुसार प्रतिफल देने वाला है। This coming, which is promised over here, is in connection with the rapture, which we considered last week. और पिछले सप्ताह में जो कलीसिया का ऊपर उठाया जाना हमने देखा, उसके संदर्भ में इस प्रतिफल की बात को हम देखते हैं। He is coming for the church. वह कलीसिया के लिए आ रहा है। So at that time, he is coming with the reward. उस समय वह प्रतिफल के साथ आएगा। That is then it is very clear that this is in association with, or this rewarding shall be, after the resurrection and rapture. तो इसका मतलब स्पष्ट रूप में है, जब पुनरुत्थान होगा और जब कलीसिया ऊपर उठाई जाएगी, उसी समय यह प्रतिफल का जो घटना है वह होने वाली है। Now come to another verse in Revelation chapter 19. प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में आएंगे। Now when you come to chapter 19 of Revelation, here what is described is the glorious appearance of the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह का जो महिमामय उसका आगमन है उसके बारे में हम देखते हैं। In one of the classes we had seen the 2 stages or aspects or phases of the second coming. और एक क्लास में हमने प्रभु यीशु मसीह के आने के जो दो स्तर या 2 भाग है उसकी चर्चा हमने की है। One is he is coming for the saints. एक वह पवित्र लोगों के लिए आ रहा है। And another one is he is coming with the saints. और दूसरा भाग है वह पवित्र लोगों के साथ आने वाला है। When he comes for the saints, the rapture shall happen. Resurrection of the New Testament believers and the rapture shall happen. और जब वह पवित्र लोगों के लिए आएगा, तब
नए नियम के जो विश्वासी है उनका पुनरुत्थान होगा और वे ऊपर उठाए जाएंगे। And after that, the Lord shall come with those saints to this earth to set up the kingdom. और उन्हीं पवित्र लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे और राज्य की स्थापना करेंगे। There is a 7 years gap between that. और उसके बीच में 7 साल का समय है। And that will be the time when there is great tribulation on the earth. और वह समय है, उस समय में पृथ्वी पर महासंकट काल का समय होगा। At that time, the church will be with the Lord. उस समय कलीसिया मसीह के साथ में रहेंगी। So when you come to chapter 19, it is about the glorious appearance. That glorious appearance is the coming with the saints. और इस 19वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का महिमामय वह आगमन है और वह पवित्र लोगों के साथ में है। When John records or describes that coming, जब यूहन्ना ने उस आगमन के बारे में विस्तृत रूप में लिखा, in verse 8 he describes the the church. वचन 8 में उसने कलीसिया का वर्णन किया है। There we read like this, and to her, that is the church, was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. और यहाँ पर उसको शब्द आया, मतलब कलीसिया को शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। Here church is being described as the bride of the Lamb. और यहाँ पर कलीसिया का वर्णन ए मेमने की वधू या दुल्हन इस रूप में किया हुआ है। And in verse 8 she is dressed up. और वचन 8 में हम देखते हैं कि उसने वस्त्रों को पहना है। Arrayed with fine linen, clean and white. शुद्ध और चमकदार महीन मलमल उसने पहना है। And what is the dress given to her? और वह जो वस्त्र उसे दिया वो क्या है? Righteousness of saints. पवित्र लोगों के धर्म के काम है। Or that means the works of righteousness which the believers, which the members of the church do down in this earth. और पृथ्वी पर कलीसिया के पवित्र लोगों ने जो भी धार्मिकता के काम किए, वही उसका वह अर्थ है। That means, well, for the works, the reward she has received, by this time. और उसके कामों के लिए उस समय कलीसिया को प्रतिफल मिलने वाला है। Yeah, she is already given that, rewards to the church. और यह वहां पर हम देखते हैं उस वचन में उसको पहले से ही वह प्रतिफल दिया हुआ है। Yeah, she is dressed up with, that linen, white and clean and all that. हमने देखा कि वह शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहने हुए है। So we understand that by the time of the glorious appearance, she is already rewarded. और प्रभु यीशु मसीह का महिमा के साथ जब आगमन होगा, तो उसे वह वस्त्र देकर पहले से हम देखते हैं प्रतिफल दिया हुआ है। What I'm trying to say is this giving of the rewards shall be in between the rapture and the glorious appearance. इसका मतलब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ये प्रतिफल देने का समय वो है कलीसिया का ऊपर उठाए जाने के बाद, और जब प्रभु फिर से महिमा के साथ वापस आएंगे, उसके बीच में वह होने वाली घटना है। Now, another thing I want you to notice is, और एक बात आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ, as I mentioned, that as we saw in the scripture, it shall be given before the judgment seat of Christ. और वह मसीह के न्यायासन के सामने वो दिया जाएगा। And where this rewarding shall happen? और लेकिन ये कहाँ पर होगा? ये प्रतिफल देना कहाँ पर होगा? Last week when we were pondering upon 1 Thessalonians chapter 4, और पिछले सप्ताह में पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4थे अध्याय पर हमने कुछ बातों को देखा। there in verse 17 we saw that we shall meet the Lord in the air. और वचन 17 में हमने देखा कि हम हवा में प्रभु से मिलने वाले हैं। Yeah, that is an important thing. We shall meet the Lord in the air. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु से हवा में मिलने वाले हैं। Earlier we had seen that the Lord is coming from heaven with the reward. और पहले हमने देखा कि प्रभु स्वर्ग से आ रहा है, प्रतिफल लेकर आ रहा है। And we shall be raptured and we shall meet the Lord in the air. और हम ऊपर उठाए जाएंगे और प्रभु से हवा में मिलेंगे। So we can understand that this rewarding shall happen in the air. तो हमें ये बात समझना है, ये जो प्रतिफल देने वाली जो घटना है
वह हवा में होने वाली है, Or in the air, the Lord shall set up, the judgment seat of Christ. और हवा में ही मसीह का न्याय सिंहासन स्थापित होने वाला है, Not in heaven, not on earth also. स्वर्ग में नहीं और पृथ्वी पर भी नहीं। In the place where we meet, in the air, well, the Lord shall reward the church. ऐसी जगह पर हवा में हम प्रभु से मिलेंगे और वहां पर हमें प्रतिफल दिया जाएगा। Which part of the air? Well, it's not being told. हवा में कौन से भाग में, वहां यहाँ पर नहीं लिखा है। And it shall be done between this two aspects of phases of the second coming, that is rapture and the glorious appearance. और मसीह के आने के जो दो अलग अलग भाग है, उन दोनों के बीच में, मतलब कलीसिया का ऊपर उठाया जाना और मसीह का महिमा के साथ प्रकट होना, उन दोनों घटनाओं के बीच में यह प्रतिफल की बात होने वाली है। As I mentioned, there is a 7 years gap there. जैसे मैंने पहले बताया कि वहां पर एक बड़ा समय है। This doesn't mean that all that 7 years the Lord is going to reward us. All the 7 years he is going to take to reward us. इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 7 साल में वह 7 साल पूरे लेने वाला है कि हमको प्रतिफल देने के लिए। The Lord is not limited by time. परमेश्वर को समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। So even if it is crores of people, the Lord can do it in a moment. और करोड़ों लोगों के लिए प्रभु एक क्षण में ये बात को कर सकता है। So what I'm trying to say is all these 7 years, well, we don't have to be in the air. इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे 7 साल हम उस हवा में नहीं रहेंगे। After the rewarding, the Lord shall take us to heaven. और प्रतिफल देने के बाद प्रभु हमें स्वर्ग में उठा लेकर जाएगा। Present us before the Father in heaven without any spot and wrinkle. और कोई झुर्री रहित और पूरे शुद्धता के साथ वह पिता के सामने हमें प्रकट करेगा। We will come to that, later. बाद में हम उस बात की तरफ जाएंगे। Now we will concentrate on the rewarding itself. अभी हम प्रतिफल के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। So from these verses we saw very clearly that this rewarding shall be after resurrection and rapture. तो हमने वचन में देखा स्पष्ट रूप में, जब पुनरुत्थान होगा और कलीसिया ऊपर उठाई जाएगी, उसके बाद प्रतिफल की घटना होगी। And it shall be before the glorious appearance of the Lord. और मसीह का जो महिमा के साथ पुनरागमन होने वाला है, उसके पहले होने वाली ये घटना है। In some time between this 7 years, the Lord shall reward the church. और इस 7 साल में कहीं पर एक समय में प्रभु हमें प्रतिफल देने वाला है। It shall happen in the mid-air. और वह हवा में होने वाला है। Now we will go forward from those truths. थोड़ा हम इस सच्चाई से आगे बढ़ेंगे। Now I want you to notice that name of that seat from which, the throne from which the Lord shall judge. जिस न्याय सिंहासन के सामने मसीह हमें प्रतिफल देने वाला है, उसका नाम हम देखने वाले हैं। It's called as judgment seat of Christ. उसे मसीह का न्याय सिंहासन कहा गया है। In that place where you have that words judgment seat, the original word is bema, B-E-M-A. और जो मसीह का न्याय सिंहासन, जो न्याय सिंहासन शब्द है, उसका जो मूल शब्द है वह बीमा है, B-E-M-A, बीमा। In the 2 verses we read from Romans and from 2 Corinthians, we had seen this word occurring. और रोमियो की पत्री और दूसरे कुरिन्थियों से जिस वचन को हमने पढ़ा, वहां पर वह शब्द आया है। Now in the ancient world, this word bema was used in 2 ways. और पुराने समय में यह बीमा शब्द 2 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता था। Especially for the Romans, when they said bema, well, for them it was the seat on which the judges used to sit and judge the people. और जो रोमी लोग थे, उनके लिए अगर हम देखें तो वह बीमा शब्द इस प्रकार से था, एक ऐसा सिंहासन जहां पर न्यायी लोग बैठते थे और वहां से न्याय करते थे। When the Romans built a city, जब रोमियो ने या फिर जब नगर बनाते थे, there were 2 things that were important for that city. और उस शहर के लिए 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। One is called as agora, in Greek word. Agora, literally that word agora means a marketplace. और ग्रीक शब्द है अगोरा, तो जो
मार्केट की जगह थी, बाजार की जगह थी, उसके लिए अगोरा शब्द इस्तेमाल होता है, तो वो बनाते थे। But when they say marketplace, it's with a different meaning than what we say. और जब हम मार्केट की जगह या बाजार की जगह बोलते हैं, तो अब जो हम जो अर्थ लेते हैं उससे वो अलग बात थी। When we say marketplace, we think of buying vegetables, fish, and all that. जब हम मार्केट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मन में आता है सब्जी लेना है, मच्छी लेना But है। for the Romans, when they say this marketplace or agora, what they meant is the administrative buildings of the government. और जब वो अगोरा शब्द रोमी लोग इस्तेमाल करते थे तो उनके समय में जो वहां पर व्यवस्थापन करने वाले बड़े बड़े अधिकारी थे, उनकी जो इमारतें थी, उनकी जो बिल्डिंग्स थी, उसको वो कहते थे। And along with that agora, there will be a bima also, judgment seat also. और उसी अगोरा इस बात के साथ वहां पर वे लोग न्याय सिंहासन की भी स्थापना करते थे। So for a Roman, when they hear bima, well, for them, well, it is a place of judgment where the judges sit and judges the people. जब रोमी लोग बीमा शब्द का इस्तेमाल करते थे तो उनको ये पता था कि वो ऐसी जगह है जहां पर न्यायी बैठते हैं और लोगों का न्याय करते हैं। But when a Greek, hears this word, uses this word bima, for him it is of a different meaning. लेकिन ग्रीक जो लोग थे, उनके लिए बीमा शब्द एक अलग उनके लिए अर्थ था। For him it is in connection with games and athletics and all that. उनके लिए जो है वह अलग अलग प्रकार की स्पर्धाएं, गेम्स, एथलेटिक्स के लिए वह इस्तेमाल करते थे। In the ancient world also, this Olympic games and all were, from that time itself. और पुराने समय से ही ये ओलंपिक की जो गेम है वह खेले जाते हैं। There were many other games also in the Greek world. और ग्रीक इन लोगों के समय में अलग अलग प्रकार के स्पर्धाएं और गेम होते थे। It was a very important thing in their life. और वह उनके जीवन में वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। Now, when they heard the word bima, for them it was the stand upon which a athlete will stand and read out the rules of the games. और वह जब वो बीमा शब्द का इस्तेमाल करते थे तो वह ऐसा एक प्रकार का एक स्टैंड था, एक जगह थी जहां पर एक एथलीट जो है या जो स्पर्धक है उसको खड़ा किया जाता था और खेल के नियम बताए जाते थे। These days also it happens. और इन आज के दिनों में भी वो बात होती है। When there is a games at the beginning of at the inauguration of that games, one of the athletes of an important country, he will stand before the crowd and read out the rules of the games. आज के समय में भी जब कोई बड़ी बड़ी स्पर्धाएं होती है तो उसका जो उद्घाटन होता है या उसके शुरुआत में ही वहां का जो कोई स्पर्धक है, एथलीट है, वह खड़ा रहता है और स्पर्धा के सारे नियमों को वहां से वह बताता है। And he'll be reading it out from an elevated place. और वह एक ऐसा बांधा हुआ, स्थापित किया हुआ एक जगह था, चौथरा था, वहां से वो बात करता था। And that place was called as bima. और वह जो जगह थी उसको बीमा कहा जाता था। Not only that, उतना ही नहीं, we have seen the victory stand from which this athletes stands and receives the rewards. एक ऐसी जगह जहां पर जो विजयी होने वाला स्पर्धक है वो एक ऐसे स्टैंड पर, ऐसे चौथरे पर वह खड़ा रहता था। These days also we see that. इन दिनों में भी हम उस जगह को देखते हैं। Those who get this first, they will stand on one side, on the top side, and the other ones on both the sides, the second and the third, and they will receive the medal from there. और जो जीतते हैं तो जो पहला जिसका नंबर आता है वो थोड़े से ऊंचाई पर खड़ा रहता है और दूसरा और तीसरा थोड़े उसके नीचे खड़े रहते हैं और तीनों को भी उस जगह पर मेडल दिया जाता है। And that stand from which they get that prizes, well, that's often we call as victory stand. और जिस स्टैंड के ऊपर वो खड़े रहते हैं, चौथरे के ऊपर, उसको हम विजय का चौथरा कहते हैं या विक्टोरियस स्टैंड उसको कहा जाता है। Greeks used to call this also by that same title, bima. और ग्रीक लोग इस भाग को भी वही नाम देते थे और उसको बीमा कहते थे। Now, when we come to the scripture and try to understand this judgment seat of Christ, we understand that both these ideas are included in this. और जब हम पवित्र शास्त्र में जाते हैं और इस बीमा शब्द को समझने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों बातें हमने देखी, वह हम देखते हैं कि उसका एक दूसरे से संबंध है।
Like a judge, the Lord shall sit on it and judge our works. एक न्यायी के समान प्रभु अपने सिंहासन पर बैठेगा और हमारे कामों को वहां से परखेगा या न्याय करेगा। At the same time, before that, we shall be, or before the judgment seat of the Christ, we shall stand and receive the rewards also. उसी समय मसीह के न्यायासन के सामने वह जो विजय की जगह है उस पर खड़े होकर हम प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। So for us, it is a place of judgment and it is a place of rewarding also. हमारे लिए वह न्याय की भी जगह है और प्रतिफल पाने की भी जगह है। But I should tell you one thing. लेकिन मुझे एक बात आपको बताने दो। When I say that we shall be judged, we should remember that believers are not judged at all for their sins. जब मैं कहता हूं कि हमारा न्याय होगा तो विश्वासी कभी भी उनके पापों के लिए परखे नहीं जाएंगे या पापों के लिए उनका न्याय नहीं होगा। Christ took that judgment. मसीह ने वह जो न्याय है वह उठाया है। On the cross, he has paid for all our sins. और क्रूस के ऊपर हमारे पापों का, सारे पापों का बदला उसने दिया है। But when we are living now in this earth, लेकिन जब हम इस संसार में जी रहे हैं, for the wrong that we do, well, we are chastised, we are punished. जो कुछ भी हम गलत करते हैं उसके लिए हमको दंड मिलता है। That is not going to be punished in future after the rapture. और वह कलीसिया ऊपर उठाए लेने के बाद वह दंड नहीं मिलने वाला है। Like a loving son, he punishes us now itself. पुत्र के न्याय वो हमें दंडित करता है, हमारी ताड़ना करता है। And then now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. और जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। Now when I say that from the judgment seat of Christ, Christ shall judge us, what I mean is he shall judge our works. और जब मैं कहता हूं कि न्यायासन से मसीह हमारा न्याय करेगा, उसका मतलब जो हमने काम किए हैं उस कामों को वह परखेगा। So when we say that we are going to be judged, it's not for our sins or as sinners. और जब मैं कहता हूं कि मसीह न्याय करेगा, इसका यह मतलब नहीं है कि पापियों के जैसे हमारे पापों का वह न्याय करेगा। But that is for our works, and we are going to be judged as servants or stewards. और जब हम देखते हैं न्याय, तो वह हमारे कामों का न्याय करेगा और जो उसके काम, उसके मजदूर है, उसके न्याय हमारा वो न्याय करेगा। Our works shall be judged before the judgment seat of Christ. हमारे काम मसीह के न्यायासन के सामने उसका वह न्याय करेगा। In connection with this judgment, well, I want to remind you 4 or 5 things. और इस न्याय के संबंध में 4-5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। I will make it as brief as possible. और बहुत ही संक्षिप्त करके मैं आपको बताऊंगा। The first thing I want you to notice is all believers shall be judged individually. एक बात है कि हर एक को अपने अपने काम के अनुसार उसका न्याय होगा, हर एक को व्यक्तिगत रूप में परखा जाएगा। Yeah, all the believers shall stand there. सब विश्वासी वहां पर खड़े रहेंगे। And everyone shall be judged individually. हर एक का व्यक्तिगत रूप में वहां पर न्याय होगा। Come to 1 Corinthians chapter 3. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में आएंगे। Verse 13. 13वां वचन। It is telling about that day of judgment of our works. और वह हमारे काम का जो न्याय होगा उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। Paul says like this. पौलुस इस प्रकार से कहता है, Every man's work shall be made manifest. तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। Every man. हर मनुष्य का। Come to chapter 4. 4थे अध्याय में आएंगे। 2 Corinthians chapter 5. 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय And verse 10. 10वां वचन। There it says, for we must all appear before the judgment seat of Christ. और वहां पर हम देखते हैं कि क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। So in both these verses we are told that every man or we all shall appear. और इन दोनों वचनों में हमने देखा कि हर एक व्यक्ति, हम सब वहां पर प्रकट होने वाले हैं। Oh, all the believers are going to stand before this. हर विश्वासी वो वहां पर खड़े रहने वाले हैं। Nobody have to, have a doubt as to,
in 7 years, are all these believers going to be judged or anything like that? और किसी को यह संदेह हो सकता है कि ये पूरे 7 साल में सब विश्वासियों का न्याय कैसे होगा। We don't have to worry about that. वो उसके विषय में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। As I mentioned, the Lord is not limited by time. जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रभु को समय की कोई पाबंदी नहीं है He is beyond all this time. और इन सब से वह परे है He can do all that in a moment. और वो एक पल भर में सब कुछ बातें कर सकता है। So we don't have to worry about the time then. और वहां का जो समय है उसके विषय में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। But the important thing I want you to notice here is everyone shall stand and the Lord is going to judge us, judge our works individually. जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह है, हर एक को मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा रहना है और हर एक का व्यक्तिगत रूप में उनके काम का वहां पर न्याय होने वाला है। If the Lord were calling us as an assembly, it would have been easier. अगर प्रभु हमें कलीसिया कहता है तो वो थोड़ा आसान हो जाता। If he is calling us as an assembly before it, as a group of each assembly to stand before him, it would have been easier for us. हाँ, अगर मसीह कहता कि उसके सामने एक कलीसिया के रूप में हमें खड़ा रहना है न्याय के लिए, तो थोड़ा हमारे लिए वो आसान हो जाता था। Those who are sitting at the last rows nowadays, who are not very active, now they could have stood, in the back row and just allowed the elders to answer. तो जैसे आज के समय में भी जो पीछे के लाइन में जाकर बैठते हैं, तो वहां पर भी वह पीछे खड़े रहते थे आराम से और वहां पर प्राचीनों को जवाब देने का वह मौका देते थे। No, the Lord is not going to, judge us as assemblies. तो नहीं, प्रभु हमें कलीसिया इस रूप में हमारा न्याय नहीं करने वाला है। Individually, that is what we understand. व्यक्तिगत रूप में वह करने वाला है। Then it is something very serious, isn't it? इसलिए ये बात बहुत गंभीर है। Whenever I say this, I remember an illustration. जब मैं बात को कहता हूँ तो एक उदाहरण मेरे सामने आता है। I don't know whether I mentioned this before in any class or not. मुझे याद नहीं इस क्लास में पहले भी मैंने इस बात को बताया है क्या। It is the time when I went for the driving license test. और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए जब मैं गया था उस समय का बात है। The time when I went, it was not very strict. और जब मैं टेस्ट देने गया तो वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, कठिन नहीं था। Yeah, the test was like this. They used to, ask questions. और वह इस प्रकार से था कि वे सवाल पूछते थे। About 20-25 candidates were there. और वहां पर 20-25 जो है लोग वहां पर बैठे थे। Now we were all taken into one room. और हम सभी को एक रूम में लेकर गए। There was one officer sitting there. वहां पर एक अधिकारी बैठा था। And he used to ask the question. और उन्होंने हमको सवाल पूछे। The interesting thing was this. और जो रोचक बात इस प्रकार से है, he was not asking us individually. उसने हमें व्यक्तिगत रूप में सवाल नहीं पूछे। All 25 should tell the answer together. हर 25 लोगों को साथ में ही जवाब देने थे। So that was how the test happened, तो इस प्रकार से वह जो परीक्षा हुई थी। I don't think what answer I gave, I don't remember, but I passed. उस समय मैंने कौन सा जवाब दिया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पास हो गया। Before the judgment seat of Christ is not going to be like that. लेकिन मसीह के न्याय सिंहासन के सामने ऐसा नहीं होने वाला है। That's why if we were answering together as an assembly or as groups, well, it would have been easy. हाँ, इसलिए अगर हमें झुंड में या कलीसिया के रूप में सवाल पूछा जाता तो हमें आसान हो जाता था। But the scripture clearly tells that we all, each one shall stand there and give our account of life. लेकिन शास्त्र हमें स्पष्ट रूप में बताता है, हम में से हर एक को वहां पर खड़ा रहना है और व्यक्तिगत रूप में हमारे कामों का न्याय होने वाला है। The second thing I want you to remember is this. दूसरी बात जो आपके स्मरण में लाना चाहता हूँ, It shall be a time of revelation. और वह जो है प्रगटीकरण का, प्रकाशन का समय रहेगा। All hidden things are going to come to light. जो भी छुपी हुई बातें हैं वह उजियाले में प्रकट हो जाएगी। Let us read couple 2-3 verses. 2-3 वचनों को हम पढ़ेंगे। Coming to 1 Corinthians chapter 3 again. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में फिर से आएंगे। We will read that verse 13 itself, but we will read it fully now. अभी हम 13 वचन को पूरा पढ़ेंगे।
Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, what sort it is. पहला कुरिन्थियों 3:13। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। Notice that, for the day shall declare it. और देखिए वहां पर लिखा है, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, It shall be revealed by fire. और वह आग के साथ प्रकट होगा। So it clearly tells that all that's hidden is going to be declared, it's going to be manifested. तो यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा है, जो भी छुपा हुआ है वह प्रकट होगा, बताया जाएगा। Come to Matthew's Gospel मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे, and chapter 12, उसका 12वां अध्याय, verses 36 and 37. 36 और 37 वचन। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। Yeah, here we see about our days, I mean our talks. और यहाँ पर हम हमारे बातों के बारे में देखते हैं। All our words, for all the idle word that we speak, we shall give account on that day. और जो कुछ भी हमने बातें कही है, जो कुछ शब्द कहेंगे, उसका हमें उस दिन न्याय होने वाला है, उसका हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। We say something or the other unnecessarily and we just forget it. हाँ, कभी कभी हम जो निकम्मी बातें हैं बोलते हैं और भूल जाते हैं। So, but here it says that it's not going to be forgotten forever. और यहाँ पर लिखा है कि वो जो निकम्मी बातें हैं वो हमेशा के लिए भूली नहीं जाएगी। A day is going to come when all things shall be brought to light, even our words. एक ऐसा दिन आएगा, सारी बातें प्रकट हो जाएगी, और जो शब्द हमने बोले वो भी प्रकट होंगे। Come to 1 Timothy chapter 5. पहला तीमुथियुस 5वें अध्याय में आएंगे, Look at verse 25. उसका वचन 25 देखेंगे। Likewise also the good works of some are manifest beforehand, and they that are otherwise cannot be hid. वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। What it means is some of the good works are manifest now itself. तो इसका मतलब ऐसा है कि कुछ भले काम अभी प्रकट हुए हैं। But here Paul says, well, there are some good works that we do which are not manifest now, even that shall be manifest on that day. और यहाँ पर पौलुस ये कहता है कि जो भले काम अभी प्रकट नहीं हो रहे हैं वो उस समय प्रकट हो जाएंगे। That is about the good works. और वह भले कामों के विषय में है। Look at verse 24. 24वां वचन देखेंगे। Some men's sins are opened beforehand, going before to judgment, and some men they follow after. कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। That means for some people sins they suffer here itself. इसका मतलब कुछ लोगों को पाप के लिए यहाँ पर ही तकलीफ उठानी पड़ती है। But others, it's not going to be hidden forever. Even that is also going to be revealed. लेकिन दूसरों के जो पाप है वो हमेशा के लिए छुपाए हुए नहीं रहेंगे, एक दिन वो भी प्रकट हो जाएंगे। Come to Hebrews chapter 4. इब्रानियों उसके 4थे अध्याय में आएंगे, Verse 13. 13वां वचन। There it says, neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. वचन 13 में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। What it means is everything is naked and open before his eyes. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की आंखों के सामने सब कुछ खुला हुआ और प्रकट है। We cannot hide anything from him. उससे हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। And a day is going to come when we have to give account of all that unto him. और एक दिन आएगा इन सारे कामों का हमें उसके सामने लेखा देना है। What I am trying to say is everything is going to be revealed, manifested on that day. जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है कि उस दिन सब कुछ जो है प्रकट होने वाला है। Everyone should give account. हर एक को अपने कामों का लेखा देना है।
It shall be a time of revelation. वह दिन है, उस दिन सब कुछ प्रकट हो जाएगा। And the third thing I want you to notice is this. तीसरी बात जो आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं वो यह It है, shall be a time of evaluation. और वह ऐसा समय है जिस समय में हर एक का जो मूल्यमापन किया जाएगा। Yeah. Earlier we saw that everything shall be revealed. पहले हमने देखा कि सब कुछ जो है वह प्रकट किया जाएगा। Now this point says that all that is manifested in that way, they shall be evaluated also. Its worth shall be determined. और इसका मतलब उस समय जो भी काम प्रकट होंगे उन सब का मूल्यांकन किया जाएगा, उसके कामों का जो महत्व है वहां पर हमको देखने के लिए मिलेगा। Come back to 1 Corinthians chapter 3. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में आएंगे। There in verse 13 we saw that everything shall be revealed. वहां पर 13वें वचन में हमने देखा कि सब कुछ प्रकट हो जाएगा। And then Paul says, fire shall try every man's work, what sort it is. और वहां पर आगे पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। Yeah, fire shall try. आग जो है वह परखेगी। When we come to verse 12, जब हम 12वें वचन में आते हैं, there Paul says about the things with which people build. और वहां पर पौलुस लिखता है कि कौन से बातों के द्वारा मनुष्य जो है वो बांधने का काम करता है। 6 items are mentioned there. 6 पदार्थों का वहां पर उल्लेख हम देखते हैं। Gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घास और फूस। These can be divided into 2 sections. और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। The first 3 and the last 3. पहले 3 और आखिर के 3। Think about the first 3. पहले 3 के बारे में सोचेंगे। Gold, silver and precious stones. सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। They are all very precious. वो सब कुछ जो है बहुमूल्य है। Fire cannot do anything with that. आग उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। You send it through fire, it shall only be, refined. It shall not be destroyed. और जब हम उसको आग में डालते हैं तो वह शुद्ध होता है लेकिन नष्ट नहीं होता। Look at the second group. और दूसरे उस झुंड के पास जाएंगे। Wood, hay, stubble. काठ, घास और फूस। It is just the opposite of the first 3. और ये पहले जो 3 हैं उसके विरुद्ध की यह बातें हैं। This has no value. इसे कोई भी मूल्य नहीं है। If you put in the fire, all these 3 shall be turned to ashes. Nothing will be there remaining. और जब हम इसको आग में डालेंगे तो उनकी पूरा भस्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, राख के सिवाय कुछ भी नहीं बचेगा। Now Paul is telling that the day is going to come when all our work shall be tested by fire. और पौलुस इस प्रकार से कहता है कि एक ऐसा दिन आएगा कि सारे हमारे काम परखे जाएंगे। And if our works comes in the first group, fire can do nothing. और आग के द्वारा जब हमारे काम परखे जाएंगे और पहले 3 बातों को हमने देखा, अगर वैसे काम रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। And if our works belongs to the second group, after the fire, after it goes through the fire, nothing shall be there. और अगर हमारे काम वो बाकी तीनों के जैसे है, तब जब वो आग से परखे जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। Now what determines to which group we belong to? और महत्व किसको है कि कौन से झुंड में हमारे काम आते हैं। What makes it determine whether our works belong to the first group or the second group? हाँ, किस बात पर यह निर्भर करता है कि हमारे काम पहले झुंड में है या दूसरे झुंड में है। For an answer, verse 13 helps us. उसके लिए 13वां वचन हमें मदद करता है। The last portion says, fire shall try every man's work, what sort it is. हाँ, उसके आखिरी के भाग में लिखा है कि आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। Yeah, what sort it is or what kind our works are. हाँ, किस प्रकार के हमारे काम होंगे। Not how much we did. हमने कितना किया वो महत्वपूर्ण नहीं। It's not about the quantity. हाँ, जो संख्या के लिए महत्व नहीं है। But it is about the quality. लेकिन जो उसका मूल्य है, दर्जा है, उसको महत्व है। What kind it is, that is the question. किस प्रकार के वह काम है, वह प्रश्न है। If we say it in another way, उसको हम थोड़ा अलग शब्दों में अगर कहें,
what is the motive of doing that? That determines to which group our works will belong to. जो काम हमने किए वो किस मनसा से किए, किस उद्देश्य से किए, उस पर यह निर्भर होता है कि हमारे काम कौन से उस दो झुंड में आते हैं। If the things that we do are for our own self, for our own glory, it will go to the second group. जो काम हमने हमारे हिसाब से हमारी महिमा के लिए किए, वो काम दूसरे उस झुंड में जाते हैं। If our motive is to glorify God or to exalt Jesus Christ, then that goes to the first group. अगर हमारा उद्देश्य परमेश्वर की महिमा था और मसीह को ऊंचा उठाना था, तो हमारे काम पहले उस ग्रुप में शामिल होते हैं। When I say work, well, we don't have to just remember about, the ministry that we do and all that. जब मैं काम इस शब्द को कहता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सेवकाई हमने किया, It applies to everything that we do in our life. हमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, उसके साथ वह संबंधित है। Our whole life should be a ministry. हमारा पूरा जीवन जो है वह सेवकाई है। Even the work in the kitchen, we can do it for the glory of God. अगर हम किचन में कुछ काम करते हैं, तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकते हैं। We can look after our children for the glory of God. हमारे बच्चों की देखभाल करना हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकते हैं। Our dealings with our neighbors can be for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने पड़ोसियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो भी वहां पर हम देखते हैं। Well, everything, all the things that we do in our life, it should be for the glory of God. जो कुछ भी हमारे जीवन में हम करेंगे, वह परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। And when it is for the glory of God, if it is Christ exalting, if it is Christ centric, then it should be worth rewarding. और जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए मसीह को सामने रखते हुए मसीह के ऊपर ध्यान केंद्रित करके उसकी महिमा के लिए करते हैं, तो उसके लिए जो है हमें प्रतिफल मिलेगा। So remember, the question is this. तो इस प्रश्न को हम ध्यान में रखेंगे, What sort it is? कैसा वह काम था। That is the question that's going to be asked on that day. और यह ऐसा सवाल है, उस दिन इस सवाल को पूछा जाएगा। When children prepare for the exams, जब बच्चे परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, they collect the questions of the previous years. वह पिछले साल के जो प्रश्न हैं उनको इकट्ठा करते हैं। 5 years question, 10 years question, and all they collect. 5 साल पहले के सवाल, 10 साल पहले के सवाल, उन सबको इकट्ठा करते हैं। When they go through the questions, they will come to know what is the question that comes every year. और जब उन सारे प्रश्नों के तरफ वो ध्यान देते हैं, तो उनको समझ में आता है कौन सा सवाल हर एक साल पूछा गया है। And thus they will be able to prepare for it. और इसलिए वह परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं। Here we don't have to worry about that. हमें यहाँ पर उस बात की चिंता नहीं करनी है। There is only one question. एक ही सवाल है, And that question is this. और वह सवाल इस प्रकार से है, What sort it is, or what kind of works we did in our life. वह कैसा काम है या फिर हमारे जीवन में हमने किस प्रकार का काम किया है। We may say like this. हम इस प्रकार से कह सकते हैं, The question for our examination is already leaked out. हमारे परीक्षा का जो सवाल है वो पहले से ही लीक हो चुका है। Yeah, the question is already given. सवाल पहले से ही दिया गया है। We just have to prepare to give the answer for that. बस हमें उसका जवाब देने की तैयारी करनी है। Every day, well, let us ask this question to ourselves. हर एक दिन हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है, Why am I teaching this now? ये मैं आज क्यों सिखा रहा हूँ? Is it for my glory, क्या यह मेरी महिमा के लिए है, or is it Christocentric? या फिर ये मसीह के ऊपर केंद्रित है? If it is for my glory, well, it is not the right kind. अगर ये मेरी महिमा के लिए है, तो वह सही प्रकार नहीं है। So like that, we have to ask this question to ourselves each and every day of our life. इस प्रकार से यह सवाल हमारे जीवन के हर एक दिन में हमें अपने आप से करना है। Yes, dear brothers and sisters, prepare for that day. प्रिय भाई और बहनों, उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करो। The fourth thing I want to remember is this. चौथी बात जो आपके स्मरण में मैं देना चाहता हूँ, It shall be a very serious time. वह एक बहुत ही गंभीर समय होगा।
When we read the descriptions of it in the epistles, we understand that very clearly. और पत्रियों में जब उस बातों को हम विस्तार से पढ़ते हैं, वहां पर स्पष्ट रूप में लिखा गया है। In that portion that we read just now, we are told that the fire itself shall test. और जिस बात को हमने अभी पढ़ा, उसमें लिखा है कि आग जो है वह परखने का काम करेगी। The word fire is used there to show us how serious and how terrible it's going to be. और जो आग ये शब्द वहां पर इस्तेमाल किया है, तो उससे हमको समझ में आता है वह कितना ही एक भयानक और गंभीर बात है। And we are told that some shall suffer loss. और हमने वहां पर देखा है कि कुछ लोग जो है वह कुछ बातों को खोएंगे। Some shall, suffer damage. और किसी को जो है नुकसान पहुंचेगा। In another portion, in 1 John 2:28, we are told that some shall go away ashamed. और जिस बात को अभी हमने देखा कि कुछ लोग जो है वहां पर लज्जित होंगे। And 2 Timothy 4:8 says the judge is going to be a righteous judge. और दूसरा तिमोथी 4:8 में देखते हैं कि वह जो न्यायी है वह धर्मी न्यायी है। So when you read all those portions in the scripture about the judgment seat of Christ, it is presented as a very serious matter. और जब अलग-अलग भागों में हम मसीह के न्याय सिंहासन के न्याय सिंहासन के बारे में जब पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि बहुत ही गंभीर यह घटना है। It is very much essential for us to take that with all seriousness. और यह बहुत हमारे लिए जरूरी है उस बात को हम पूरी गंभीरता से लें। Well, the children of God cannot escape that day. और परमेश्वर की संतान उस दिन से भाग नहीं सकते या उस दिन को चुका नहीं सकते। If we cannot escape, better prepare for that day. अगर हम उस बात को टाल नहीं सकते, तो उस दिन के लिए हमें तैयार रहना है। The fifth thing I want to remember is this. पांचवी बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, It shall be a time of rewarding. वह समय प्रतिफल का समय होगा। The first thing I said is all believers shall be judged individually. पहली बात हमने देखी कि हर एक विश्वासी का व्यक्तिगत रूप में न्याय होने वाला है। The second thing is it shall be a time of revelation. दूसरी बात हमने देखी कि वह प्रकट करने का दिन होगा। Third thing is it shall be a time of evaluation. तीसरी बात हमने देखी कि वह समय जो है वह मूल्यांकन करने का समय होगा। Fourth thing is it shall be a terrible time. चौथी बात कि वह गंभीर और भयानक बात है। And the fifth thing is it shall be a time of rewarding. और पांचवी बात वह प्रतिफल देने का समय है। Dear brothers and sisters, let me tell you one thing. प्रिय भाई और बहनों, एक बात मुझे बताने दो। Salvation is free. उद्धार मुफ्त में है। We didn't do any work for that. उसके लिए हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं। We could not do any work for that. उसके लिए हम कुछ काम कर भी नहीं सकते। The Lord did it all. प्रभु ने सब कुछ किया है। The salvation is by grace, by faith alone. और उद्धार जो है वह अनुग्रह के द्वारा और विश्वास से प्राप्त हुआ है। What rewards are we get by our works. लेकिन प्रतिफल जो है वो हमें हमारे कामों के द्वारा मिलने वाले हैं। When you come to the scripture, we see the mention of various, rewards. और जब हम पवित्र शास्त्र में जाते हैं, तो अलग-अलग प्रतिफल की चर्चा हम वहां पर देखते हैं। I'm not going into the details of that. एकदम उसमें हम गहराई में मैं नहीं जाना चाहता। There are about 5 kinds of crowns being mentioned. 5 प्रकार के मुकुट भी हम देखते हैं कि उसका जिक्र पवित्र शास्त्र में है। The incorruptible crown. एक अविनाशी मुकुट, Crown of rejoicing. आनंद का मुकुट, Crown of righteousness. धार्मिकता का मुकुट, Crown of life. जीवन का मुकुट, Crown of glory. महिमा का मुकुट। I'm not going into the details of that. उसकी गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ। Apart from these crowns, there are mention of other things also. इस मुकुट के साथ और भी बातें वहां पर जिक्र किया हुआ है। There are commendations, that is, verbal, praise from the Lord. और वहां पर प्रभु के द्वारा प्रशंसा भी होने वाली है। And then we will be given thrones to judge with the Lord. हमें वहां पर सिंहासन भी मिलने वाले हैं। And we are going to share the glory of the Lord also. और वहां पर हम
परमेश्वर की महिमा जो है वो भी प्रकट करने वाले हैं। As a reward, well, we shall be given different kinds of services too. और प्रतिफल के साथ हमें अलग अलग काम भी वहां पर मिलने वाले हैं। There are various verses which tells all this. I'm not going into the details of it. अलग अलग वर्षों में इसके बारे में हम देखते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। But let me tell you, it shall be a time of rewarding. The Lord, the righteous Lord, shall not forget any faithful thing that we do for him. और जो हमारा धर्मी और न्यायी और विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो कुछ भी हमने काम किए उसको भूलेगा नहीं, इसलिए वह समय जो है वह प्रतिफल मिलने का समय है। May the Lord help us that we may be found faithful in his eyes. और प्रभु हमें सहायता करे कि हम उसकी दृष्टि में विश्वास योग्य पाए जाए। When we come to Revelation chapter 21, जब हम प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में आते हैं, in verse 4, चौथे वचन में, there we read like this: वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, God shall wipe away all tears from their eyes. परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। This is after reaching the presence of the Lord. और जब हम परमेश्वर की समक्षता में पहुंच जाएंगे तब यह होगा। The Lord shall wipe away all tears. प्रभु हर आंसुओं को पोंछ डालेगा। At that time also there shall be tears for us. क्या वो ऐसा समय होगा तब आंसू भी होंगे? Somebody has explained like this. किसी ने इस प्रकार से उसका विवरण दिया। Probably the tears may be in connection with the rewarding. और वह जो आंसू है वह प्रतिफल से संबंधित है। And he says all shed tears. और वहां पर वो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि सबके आंसू, आंखों में आंसू रहेंगे। Those who got lot of rewards, they will also cry, hey, I should have done more. किसी को ज्यादा प्रतिफल मिला तो वो भी वहां पर रोएगा और कहेगा, हाँ मुझे बहुत कुछ मिला। And those who got only little, well, they will say, hey, I should have done something. और जिनको कम मिलेगा वो भी वहां पर रोएगा और कहेगा, हाँ मैंने थोड़ा बहुत किया। Oh, so I don't know whether that explanation is right or not, but it is something that makes us think, मुझे पता नहीं कि वह विवरण सही है या गलत है, लेकिन वो हमें विचार करने के लिए मजबूर करता है। But let me tell you one thing, we have to look forward to that day of rewarding and order our life now. और जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम सामने उस न्याय सिंहासन को, प्रतिफल को देख रहे हैं, उस प्रकार से हमारे जीवन में हमें एक अनुशासन लाना है। Let us not take this lightly. इस बात को हम हल्का ना लें। In the Bible, this is not written just like that, simply to make us fear, to scare us. पवित्र शास्त्र में केवल हमें डराने के लिए इस बात को नहीं लिखा है। It is written because it's going to happen just like this. ये इसलिए लिखा है कि जो के तो वैसे ही यह बात होने वाली है। So a resurrection is going to happen. और पुनरुत्थान होने वाला है। Rapture is going to happen. कलीसिया का ऊपर उठाया जाना होने वाला है। After that, the rewarding shall happen. उसके बाद प्रतिफल की घटना होने वाली है। If our hands are faithful now, then our hands will be steady also. और जब अगर हमारे हाथ आज विश्वास योग्य है तो उस समय हमारे हाथ स्थिर भी रहेंगे। So dear brothers and sisters, let us prepare to meet our Lord. प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु से मिलने के लिए हम तैयार रहे। That is what this truth about the judgment seat of Christ, the Bema, teaches us. और जो बीमा मसीह का न्यायासन है, उससे इस सच्चाई को हम सीखते हैं। Set our eyes on these truths and order our life daily. इन बातों के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करें और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में अनुशासन को हम लाएं। Ask this question always. यह सवाल हम अपने आप से हमेशा करें। What kind of life I am living? किस प्रकार का जीवन में जी रहा हूं? Is it for His glory? क्या वो उसकी महिमा के लिए है? You know it. आपको पता है। Lord knows it too. प्रभु को भी पता है। Now it is hidden. अभी वह छुपा हुआ है। It's not going to be hidden forever. हमेशा के लिए छुप कर रहने वाला नहीं है।
Bring your life to the presence of the Lord and say, Lord, I am weak, I am failing. अपने जीवन को प्रभु के सामने लाए और कहे, प्रभु मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, Give me grace to be faithful in your sight. मुझे आप अनुग्रह दे ताकि मैं आपकी दृष्टि में विश्वास योग्य ठहरूं। May the Lord help us that we may examine ourselves and make corrections in our life and live for His glory. प्रभु हमें सहायता करे, हम अपने आप का आत्म परीक्षण करें, हमारे जीवन को प्रभु के सामने जो उचित सुधार है उसको लाए और प्रभु की महिमा के लिए हम जिए। May God bless these words into our lives. इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दे।